Hello dear students, today solution of homogeneous differential equations, which is very important for all the boards like as IB, IGCSE, CBSE, ISC, HSC or any other state board. This topic is most important for all the boards. So now see exercise 6.4 and question number first. Solve each of the following. Here first question is x into sine of y upon x into dy equals y multiplied by sine of y upon x minus x into dx. So attention on the question. Here it is given that y upon x into dy and here it is given that this bracket into dx. So here dy and dx are in separated form. First, we should take as dy upon dx or dx upon dy as you have easily complete. So, you can complete it x into sine of y upon x into dy equal to y into sine of y upon x minus x into dx. तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक मॉडिफाइड फॉर्म में भी इसको भी लिखना पड़ेगा. So first we check the equation. So this equation is homogeneous equation of the differential equation. तो चेक हो गया. ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, this is the homogeneous differential equation. Put y equal to vx and differentiating this equation with respect to x. Differentiating this equation with respect to x. So what we have here, dy upon dx equals applying u into v formula which you know very well. So v into dy dx of x is 1, v into 1 becomes v only plus x into dy dx of v, that is dv upon dx. This means if we put y equal to vx, we get dy upon dx equal to v plus x into dv upon dx, and let it be equation number second. Here it is equation number first. Now given differential equation means given homogeneous differential equation can be written as x multiplied by sine of y upon x into dy upon dx equal to y into sine of y upon x minus x, means taking dx on the left hand side we get here dy upon dx. You can check again, it is here into dy and here it is into dx. So taking dx on the left hand side we get here dy upon dx. तो ये दोनों को मिला करके हमने कंबाइंड फॉर्म में कर दिया. जैसा कि मैं क्वेश्चन के बिगनिंग में भी बताया था, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो आगे चलते हैं. अभी इसमें जो हम लोगों ने तो इक्वेशन फॉर्म कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया इजिली, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया और इक्वेशन नंबर 3 भी आ गया. तो ये इक्वेशन को चाहे तो क्वेश्चन के जस्ट बाद एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3. तो इन एनी वे नाउ वी शुड से फ्रॉम 1, 2 and 3. तो यूजिंग ऑल these 3 equations we get what we get here. Now see very carefully. We get next equation as x into sine of v, because y upon x, you can check from here, v equal to y upon x or y upon x equal to v. So here x into sine of v, because it is y upon x, into value of dy upon dx, which is v plus x dv upon dx. So we write here x sine v multiplied by v plus x into dv upon dx equal to here y equal to vx and sine of y upon x, that is sine v minus x as it is. तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ v एंड x. अब हमें क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अनदर फॉर्म में लिखा जिसमें हमने dy बाई dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी गेट दिस इक्वेशन. After that, what should we do? Now, we should
make it as variable separable form. Which form? Variable separable form. For the variable separable form, we should multiply by x into sin v into v, that is vx into sin v plus x sin v become into x into dv by dx. Here x square into sin v into dv by dx equals v into x into sin v minus x. After that, we should take here equal terms. Equal terms are vx into sin v and also here vx into sin v. So they will be cancelled from each other. तो इनको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। यहाँ पर चलो क्रॉस आउट कर दिया, ये दोनों कट हो गए क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सिंपल थे। और अगर इनको क्रॉस आउट करना है तो यहाँ पर पेन से क्रॉस आउट कर सकते हो। मैंने नहीं किया, जिससे यहाँ पर नीटनेस पर थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। अदरवाइज इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये दोनों टर्म यहाँ पर सेम है एंड यू कैन कैंसल इट। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों टर्म को हम लोगों ने कट कर दिया। ठीक है, वी एक्स साइन वी और वी एक्स साइन वी। चलो इसको हाईलाइट कर दिया, हो गया यहाँ पर। चलो जाओ, ये हो गया वी एक्स साइन वी प्लस एक्स स्क्वायर साइन वी डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ भी वी एक्स साइन वी माइनस एक्स। तो ये दोनों हम लोगों ने क्रॉस आउट कर दिया, ये कट हो गए। नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स स्क्वायर इंटू साइन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वन टाइम कैंसिल होगा। ये वन टाइम कैंसिल कैसे हम लोग कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, डिवाइडिंग बाई एक्स, क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाई एक्स। वन टाइम यहाँ पर एक्स कैंसिल हो जाएगा और वन टाइम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो वन टाइम एक्स कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। तो हमें यहाँ पर जो टर्म अभी मिलने वाला है, जो टर्म यहाँ पर आने वाला है, उसको क्या करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर वन टाइम एक्स रिमेनिंग, तो एक्स इंटू साइन ऑफ वी इंटू डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि हमने एक्स से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ द साइड्स वी गेट हियर माइनस वन एंड हियर एक्स। तो एक्स इंटू साइन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब इसके बाद ये अभी भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं हुआ है। आइए अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कंप्लीटली यहाँ पर कर देते हैं। तो साइन वी इंटू डी वी, यहाँ पर साइन वी इंटू डी वी कर लिया इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। टेकिंग एक्स ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट हियर वन अपॉन एक्स, तो माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो दिस स्टेप इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखो, ऑल वी टर्म्स विथ डी वी एंड ऑल एक्स टर्म्स विथ डी एक्स। Now you are free for integration on both the sides. So right here, integrating on both sides. Integral of sin v dv equal to minus of integral 1 upon x into dx. So integral of sin v dv is minus cos v and integral of 1 upon x dx is log of mod of x plus c. यहाँ पर मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है बिकॉज दे कंटेन माइनस माइनस। तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस सी। यहाँ पर प्लस है तो प्लस यूज करो, अगर सब पॉजिटिव हो तो प्लस है और सब नेगेटिव हो तो यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई माइनस वन ऑन बोथ साइड वी गेट हियर कॉस ऑफ वैल्यू ऑफ वी वाई अपॉन एक्स एंड इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव साइन ले लिया। तो वैसे हम लोग सी को नेगेटिव नहीं लिखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर कर दिया कि माइनस कॉस बी माइनस लॉग एक्स माइनस साइन। तो यहाँ पर माइनस सी ले सकते हैं और हमने जैसे ही माइनस को मल्टीप्लाई किया ये प्लस सी हो गया तो हमने कन्वर्ट कर दिया। या माइनस सी को हम लोग प्लस सी लिख सकते हैं तो सी डैश यूज कर सकते हो। तो उसका अभी यहाँ पर कोई स्पेशल मीनिंग नहीं। तो cos ऑफ y अपॉन एक्स इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी इज द सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहा हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इजिली सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर कंप्लीटली हमने यहाँ पर पूरा ओपन रखा है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैंने एक स्टार मार्क यहाँ पर यूज किया, व्हाई इट इज दिस, वो मैं बताऊंगा। पहले सोल्यूशन देखो फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन हियर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो सॉल्विंग कंटिन्यूसली, स्टार मार्क इसलिए यहाँ पर यूज किया गया क्योंकि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स
माइनस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो मैंने जो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को राइट मान करके कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन राइट लिखा गया, हमने यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर जो स्टूडेंट आंसर को राइट मान के यहाँ पर चलेंगे तो उनको यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। इफ यू आर कंसिडरिंग द टेक्सुअल आंसर इज करेक्ट तो यू शुड राइट हियर प्लस, you will get textual answer. Otherwise, if we solve by x square minus y square into dx minus 2xy into dy equal to 0, तो we get different answer, means other than the textbook. तो दोनों सॉल्व करके देखना है। मैंने यहाँ पर माइनस के लिए प्रोवाइड किया है, बिकॉज अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, और प्लस लेते हैं तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस से भी सॉल्व करो और माइनस से भी सॉल्व करो। कंसिडर एज textual question is correct. Here x square minus y square into dx minus 2xy into dy equal to 0. Therefore x square minus y square minus 2xy into dy upon dx equal to 0. Means dividing by dx on both sides we get here. Let it be equation number first. हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम भी कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट हियर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो put y equal to vx, differentiating with respect to x on both sides we get dy upon dx equal to v plus x into dv upon dx, क्योंकि हमने यहाँ पर u into v के फार्मूला अप्लाई किया और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो v into डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो v into 1 becomes v प्लस x into d by dx ऑफ v dv upon dx। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, सेम सब्स्टिट्यूशन वहां पर भी लिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल गया कि dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो ये 1 2 3 इक्वेशंस यहाँ पर हैं, 3 इक्वेशंस। ये तीनों ही इक्वेशन का यूज करेंगे और देखते हैं कि हमें फिर क्या मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 वी गेट here x square as it is, value of minus y square, that is minus v square x square, because y equal to vx, minus 2x into value of y is vx into value of dy upon dx is v plus x dv by dx equal to 0। एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो भी चलेगा कि हमने इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड के वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आगे के स्टेप्स हमारे क्या हैं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर हियर, एक्स इंटू एक्स, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर वी गेट हियर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बिकम्स 1, वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई टर्म है, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आया 2v इंटू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। So we have here 1 as it is minus v square minus 2v into v minus 2v square minus 2vx into dv upon dx equal to 0। Now they are like terms या similar हैं, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो 1 minus 3v square इक्वल टू 2vx into dv upon dx। ये हमने टर्म को यहाँ पर माइनस 2v dv upon dx को राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद इसको ऐड करने के बाद हमें मिल गया 1 माइनस 3v स्क्वायर और यहाँ 2vx dv बाई dx। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग x एंड dx, यहाँ पर देखो x अपॉन dx आ रहा है, तो यहाँ इस साइड अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्या हो जाएगा dx बाई x इक्वल टू 2v, यहाँ पर 2v रिमेनिंग है, 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर इंटू dv। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसी को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम लोग कंसिडर करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अब ये x का टर्म dx के साथ हो चुका है और जो v के टर्म थे वो dv के साथ हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म रेडी होगा, नाउ क्वेश्चन इज ready for integration, so we can say integrating on both sides we get integral of dx upon x equal to integral of 2v upon 1 minus 3v square into dv।
तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिंस डी बाई डी वी ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 6v दैट इज माइनस 6v, ये हमारा आ गया यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन। तो अगर ये माइनस 6v है, हम लोग अगर न्यूमरेटर को माइनस 6v में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हमारा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, माइनस 6 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आता है माइनस 6v, हमारे पास है 2v, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने लिया इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस 6v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर इंटू डी वी। अब यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर एग्जैक्टली, so here it is property integral of f dash x upon fx dx equal to log of mod of fx यूज कर सकते हैं। now integral of dx by x is log of mod of x plus log c1 equal to minus 1 by 3 log of mod of 1 minus 3v स्क्वायर, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब इसके बाद log m प्लस log n, तो log of c1 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 log of 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज वैल्यू ऑफ v इज y अपॉन एक्स, यहाँ हो गया y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं आराम से, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3 log c1 x इक्वल टू माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। So it can be written as n into log m, that is log m raised to n, तो log of c1x होल क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन क्योंकि हम लोग इसको इंटरचेंज कर रहे हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो log of एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ c1 क्यूब x क्यूब, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, c1 क्यूब x क्यूब, तो कंसिडर c1 क्यूब एज c, यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, यहाँ साइड में लिख सकते हो कि c1 क्यूब एज c, लेट c1 क्यूब एज c बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, देयरफॉर c इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो हियर एक्स स्क्वायर गोइंग बाय एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो वी हैव सी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सो एक आंसर तो यहाँ भी ऐसा लिख सकते हो कि c इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और एक्स क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय दिस एक्स हियर, और c को यहाँ ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू c, क्योंकि हमने यहाँ जो 1 अपॉन c आ रहा था उसको हमने c एज्यूम कर लिया वापस से। तो दिस इज द solution या जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू c। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड फॉर्म में सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंसिडर करके, उनको टेक्सटुअल आंसर मिल जाएगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट फॉर द सॉल्यूशन, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Here 1 plus 2 into e raised to x upon y plus 2 into e raised to x upon y into 1 minus x upon y into dy upon dx equal to 0. This is the given differential equation or homogeneous equation. So it can be written as 1 plus 2 e raised to x upon y plus 2 e raised to x upon y into 1 minus x upon y. ये dy upon dx को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। देखो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, उसका रीजन है, मैं यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका रीजन क्या है, हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया। ये डी वाई बाई डी एक्स था लेकिन हमने इसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई में कन्वर्ट किया, बिकॉज हियर इट इज गिवन दैट एक्स अपॉन वाई नॉट वाई अपॉन एक्स। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल के पावर को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और यहाँ पर इजिली इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर पाएंगे। तो ये रीजन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर मिल गया 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन वाई प्लस
2 into e raised to x upon y into 1 minus x upon y into 1 upon dx by dy equal to 0. Now multiplying by dx by dy on both sides we get. So therefore dx upon dy into 1 plus 2 e raised to x upon y plus 2e to the power x upon y into 1 minus x upon y equal to 0. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. अब ये देखो यहाँ पर भी x अपन y है, यहाँ भी x अपन y, यहाँ भी x अपन y और यहाँ dx अपन dy. तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही सब्स्टिट्यूशन में भी जाना पड़ेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली. पुट x अपॉन वाई इक्वल टू वी. अभी तक हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसमें क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, पुट y अपॉन x इक्वल टू वी. लेकिन यहाँ पर कैसा है, पुट x अपॉन y इक्वल टू वी. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करना है बट सोल्यूशन इज डिफरेंट. x अपॉन y इक्वल टू वी और x इक्वल टू वी वाई. लेट इट बी इक्वेशन सेकंड क्योंकि हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम किया है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. जहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे वहां पर आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. वी गेट dx by dy इक्वल टू v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई. देखो dx by dy यहाँ पर आ गया x के लिए और v यहाँ पर u इंटू वी की फार्मूला. तो v एज इट इज d by dy of y 1. तो v into 1 becomes 1. v into 1 becomes v plus y into dv upon dy. And let it be equation number third. Now we have three equations, first, second and third. So using these three equations means substituting the values of equation 2 and equation 3 in equation first. So we should write here from equation 2, 1, 2 and 3. तो therefore here dx by dy सबसे पहले हमारा यहाँ टर्म है क्या, dx by dy. तो dx by dy from third equation v plus y dv upon dy. तो v plus y dv upon dy multiplied by 1 plus 2 e raised to x upon y, but x upon y is v. 1 plus 2 into e raised to v plus 2 into this, that is 2 into e raised to v into 1 minus x upon y, that is 1 minus v equal to 0. Because v equal to x upon y. Now open is bracket. So v into 1 plus 2 e raised to v, that is v plus 2v into e raised to v plus y dv by dy का भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेते हैं. तो वी हैव y into dv by dy plus 2y into e raised to v into dv upon dy plus 2 e raised to v into 1 here and 2 e raised to v into minus v, that is minus 2v e raised to v equal to 0. तो अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा इक्वेशन है और इस फुल इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर अपोजिट टर्म्स हैं और इक्वल हैं तो उनको कैंसिल करते हैं. तो यहाँ पर प्लस 2v e raised to v एंड हियर माइनस 2v e raised to v, दे विल बी कैंसिल्ड. तो उनको क्रॉस आउट कर दिया. रिमेनिंग टर्म्स v प्लस 2 e raised to v, ये फ्री टर्म है जिसमें dv अपॉन dy नहीं है. प्लस हियर y कॉमन इन दीज टू टर्म्स, टेकिंग y कॉमन इंटू 1 प्लस 2 e raised to v एंड dv अपॉन dy कॉमन, ये भी कॉमन है इक्वल टू 0. तो हमने यहाँ पर y इंटू dv अपॉन dy को बाहर कॉमन कर लिया. रिमेनिंग टर्म आ गया 1 प्लस 2 into e raised to v. After that, this equation can be written as 1 upon y into dy. देखो यहाँ पर है तो हम यहाँ से y upon dy को ट्रांसफर कर लिया इधर. तो 1 upon y into dy प्लस 1 plus 2 e raised to v upon v plus 2 e raised to v into dv और इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया. तो dy upon y यहाँ पर हो गया और ये 1 plus 2 e raised to v upon v plus 2 e raised to v into dv equal to 0. This equation is known as variable separable form. और ऐसा सभी स्टूडेंट को मालूम है कि जैसे ही हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को पाते हैं यहाँ पर इमीडिएटली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो आफ्टर दिस स्टेप यू कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन इजिली. तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ 1 upon y dy प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 plus 2 e raised to v upon v plus 2 e raised to v into dv equal to
0। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें अब जो टर्म्स यहाँ पर मिलते हैं ये इंटीग्रल 1/y dy, तो यहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस, अब यहाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ये क्या है, डी बाई डी वी ऑफ वी 1 और डी बाई डी वी ऑफ 2 e रेज टू वी सेम रहेगा। तो ये फॉर्मेट हमारा, मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है कि यूजिंग इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी फॉर सेकंड इंटीग्रल ओनली। सेकंड इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर है, ये सेकंड इंटीग्रल के लिए हमने ये फॉर्मेट, ये प्रॉपर्टी यूज किया। तो हियर इट इज प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2 e रेज टू v इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो यहाँ पर आया हमारा log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस log ऑफ v प्लस 2 e रेज टू v इक्वल टू log ऑफ c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर log m प्लस log n की फॉर्मूला है, तो log m इंटू n दैट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे log ऑफ मॉड ऑफ y इंटू v प्लस 2 e रेज टू v इक्वल टू log ऑफ c। तो log ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू log ऑफ सेकंड दैट इज फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। तो ये हो गया y इंटू ये y एज इट इज इंटू वैल्यू ऑफ v x अपॉन y प्लस 2 e रेज टू x अपॉन y इक्वल टू c। तो हमने यहाँ पर log को एलिमिनेट भी किया और उसके साथ साथ v का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट y इंटू एक्स अपॉन y, तो यहाँ पर y गेट कैंसल्ड, वी गेट x ओनली, वी गेट x प्लस y multiplied here also, so 2y into e raised to x upon y equal to c, which is general solution of differential equation। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, और यू कैन से सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है और सभी स्टूडेंट को समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट this type of the question or other questions also, so you can ask in the comment section। now see question number 4th। अब यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन, कमिंग क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही केयरफुली हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई हियर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इट कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। मीन्स डी एक्स से हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, या यू कैन से डिवाइडिंग बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स तो भी चलेगा। तो ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट y इक्वल टू वी एक्स, let it be equation number second, and differentiating with respect to x we get dy upon dx equal to v plus x dv by dx, and let it be equation number third। ये हमारे 3 इक्वेशंस कंटिन्यूअस यहाँ पर मिल गए। फर्स्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेकंड इक्वेशन हमारा है पुट y इक्वल टू वी एक्स, और थर्ड इक्वेशन हमने जो अभी इसको डिफरेंशिएट करके लिया वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया है, सेकंड में भी आया हुआ है और फोर्थ में, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन अलग लिया था और वहां पर हमें वैल्यू dx अपॉन dy की मिली थी। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बिकॉज वाई इक्वल टू वी एक्स प्लस हियर इट इज एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का मतलब एक्स इंटू वी एक्स, ये हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस वन एज इट इज इंटू वैल्यू ऑफ dy by dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड v plus x dv by dx equal to 0। now here it is v square x square and here x square common, so dividing throughout by x square on both sides we get v square plus v plus 1 into v plus x dv by dx equal to 0। now to open the bracket here, v square plus here it is v into v square v into x dv by dx plus 1 into v that is v plus 1 into x dv by dx equal to 0। now here v square plus v square that is 2v square and plus v also here plus vx dv by dx plus x dv by dx, so taking x dv by dx common from these two terms we get v plus 1 into x dv by dx equal to 0।
नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dx बाई एक्स। यहाँ देखो x अपॉन dx है, तो इसको हम इस साइड में ट्रांसफर कर लिए। यहाँ पर साइड मतलब इसका जो टर्म है हमने यहाँ पर डिवाइड किया। एक्चुअल कंडीशन हमारी जो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर जो करते हैं, यहाँ dx को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dx आता है, फिर इसके बाद x इंटू टू स्क्वायर प्लस v से डिवाइड करते हैं, तो हमारे ये टर्म आते हैं। तो dx बाई एक्स, तो यहाँ पर सीधे सीधे समझने के लिए देखो x अपॉन dx है, ये हो गया dx बाई एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। और इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे। तो v प्लस वन अपॉन टू वी स्क्वायर प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू 0। और जो भी स्टूडेंट अगर ये मेथड को नहीं समझते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा, और उसके बाद फिर टू वी स्क्वायर प्लस वी इंटू एक्स से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो हमें ये टर्म इजिली मिल जाएगा, मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वेशन सामने आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये इक्वेशन हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ये भी ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डोंट फॉरगेट रीसब्स्टिट्यूट इन द लास्ट आंसर। तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ v प्लस वन अपॉन वी। अब देखो टू वी स्क्वायर प्लस वी है, तो इसको हम लोग v इंटू टू वी प्लस वन लिख सकते हैं, इंटू डी वी इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें v है कॉमन। नाउ इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स प्लस, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग v इन द न्यूमरेटर। तो अगर हमने यहाँ पर v प्लस वन प्लस वी माइनस वी किया, तो v प्लस वी बिकम्स टू वी, तो टू वी प्लस वन माइनस वी अपॉन v इंटू टू वी प्लस वन इंटू डी वी इक्वल टू 0। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स प्लस, अब इनको सेपरेट करते हैं, टू वी प्लस वन अपॉन वी इंटू टू वी प्लस वन, टू वी प्लस वन कट, तो ये हो गया इंटीग्रल वन अपॉन वी डी वी माइनस वी अपॉन वी इंटू टू वी प्लस वन, यहाँ पर वी गेट कैंसल्ड, here integral 1 upon 2v plus 1 into dv equal to 0. Now integrate each term separately. So integral of dx by x log of mod of x plus integral of 1 upon v dv, that is log of mod of v, minus here it is integral of 1 upon 2v plus 1 dv, that is 1 by 2। ये जो इसका कोफिशिएंट है v का 2, इसके लिए 1 by 2 आता है, 1 by 2 log of mod of 2v plus 1 equal to log of c1। जो हमारे सभी टर्म में यहाँ पर लॉगरिथम्स हैं, हम लोग इसको log m इंटू एन, और यहाँ माइनस का भी फार्मूला है, लेकिन ये 2 है, इसलिए हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके log को एलिमिनेट करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2 इंटू log ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 log v माइनस log ऑफ mod ऑफ 2v प्लस 1 इक्वल टू 2 log c1। हियर log m प्लस log n, ये इंटू हो गया, और ये 2 भी है यहाँ पर इनके कोफिशिएंट, तो ये हो गया n इंटू log m, दैट इज log m रेज टू n। ये 2 log mod ऑफ x हो जाएगा, log ऑफ x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर यहाँ हो गया log v स्क्वायर, और दोनों में है प्लस, तो log x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, और यहाँ है माइनस, तो अपान कर दिए, अपान 2v प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ c1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया c1 स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो हमारा टर्म यहाँ पर आ रहा है इजिली, तो log log eliminated, we have x स्क्वायर इंटू वैल्यू ऑफ v इज y अपॉन x, तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू c। लेट c इक्वल टू log c1 स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। हियर x स्क्वायर गोइंग बाय x स्क्वायर, तो वी हैव, और यहाँ पर x इंटू 1, तो यहाँ पर हो गया 2y प्लस x अपॉन x, एंड दैट x गोज टू न्यूमरेटर, तो यहाँ पर x स्क्वायर कट हो चुका है, सिर्फ y स्क्वायर रिमेनिंग है, और x स्क्वायर डिनोमिनेटर से आ जाता है, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2y इक्वल टू c। तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिखें, या एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2y, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 2y इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन इजिली कंप्लीट हो गया। तो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करने के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।